کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں چائے والے کی بیٹی رضا وحید نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، 1060 نمبر حاصل کیے۔ محمد قیس نے 1059 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ امتحانات میں کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 99,874 امیدواروں میں سے 65,837 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ پنجاب کالج ڈائیور روڈ کی رضا وحید نے 1060 نمبر حاصل کیے۔ کپس کالج کے محمد قیس 1059 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ پنجاب کالج جھڑا والا روڈ فیصل آباد کی فاطمہ خان اور پنجاب کالج رجانہ روڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بلال رانا 1056 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہے۔ فیصل آباد میں چائے بنانے والے عبد الوحید کی بیٹی رضا وحید نے 1060 نمبر کے ساتھ بورڈ ٹاپ کر لیا۔ رضا وحید رزلٹ سے پہلے ہی نسٹ اسلام آباد میں BA سافٹ ویئر انجینئرنگ میں داخلہ حاصل کر چکی ہیں۔ وائس پرنسپل محمد مسعود گلدستے اور تحائف لے کر رضا وحید کے گھر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد جی ان کے پیرنٹس کو۔ پھر دوسرے نمبر پہ پنجاب کالج جو ہے وہ بچوں پر جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، تو الحمدللہ اس بیٹی کی پارٹ 1 میں بھی جو ہے وہ پہلی پوزیشن رہی ہے۔ بیٹی کی کامیابی پر والد عبد الوحید کے خوشی کے آنسو نہ تھم سکے۔ بولے خود نہیں پڑھ سکا لیکن بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ مالی مشکلات کے باوجود بیٹی نے محنت سے کامیابی حاصل کی۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کام میں کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہماری بیٹی ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئی ہے، اللہ نے بہت رحمت کی ہے۔ شکر الحمدللہ استاد کا، ہم کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں اور ہم مشکور ہیں اساتذہ کے جنہوں نے بچی پہ محنت کی ہے۔ ہوں پیپر ہوں بھی جگہ تانگا رون لا جانا، ہوں میرے کچھ نہیں میرے پلے پیا، پھر میں بچے نے کہا میں تو اندر بہ کے کلی پڑھ لا، اس طرح صحیح ماشاءاللہ پڑھنے کا ہی سی انہوں زیادہ۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان۔ ضلع جنگ میں 16,073 طلبہ میں سے 11,480 پاس ہوئے۔ تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ضلع بھر سے 16,073 طلباء و طالبات امتحان میں شریک ہوئے۔ 11,480 طلباء و طالبات نے امتحان پاس کیا، جبکہ 4,593 طلباء فیل ہوئے۔ ضلع بھر میں پاس طلباء کی شرح 71.42% رہی۔ گورنمنٹ آدھوال کالج جھنگ کا انٹر ریزلٹ 39.85%۔ غزالی گریجویٹ کالج میں پاس طلباء کی شرح 52.17% رہی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ عیسیٰ شاہ میں 43%۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج شور کوٹ سٹی میں 40% طلبہ ہی پاس ہو سکے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول روڈو سلطان میں 45% اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج 18 ہزاری میں 33% طلبہ پاس ہو سکے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن حکام کے مطابق کامیابی کے تناسب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کم رزلٹ کے حامل کالج سربراہان سے جواب طلب کیا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ بجلی مہنگی، کھاد کی عدم دستیابی، شوگر ملوں سے واجبات بھی نہ ملے، جھنگ کے کسان پھٹ پڑے۔ جھنگ کے کسان ایک بار پھر سے سڑکوں پر آ گئے۔ چنیوٹ موڑ پر کسان اتحاد کی جانب سے مطالبات کی عدم منظوری پر احتجاج کیا گیا۔ کسانوں کو شوگر ملز کی جانب سے واجبات کی ادائیگی ہوئی، نافیسکو کی جانب سے بلز کے حوالے سے ریلیف فراہم کیا جا سکا۔ ضلعی صدر کسان اتحاد واجد نول کا کہنا تھا کہ متعدد بار احتجاج کے باوجود ادائیگی ممکن نہ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھادوں کی فراہمی کے حوالے سے مسائل پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ہمارا ایجنڈا جو ہے، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ کوئی ناجائز نہیں ہیں، جائز مطالبات ہیں۔ کھاد کا پرابلم ہے کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر جنگ صاحب سے میں نے گزارش کی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ سے بھی ہماری گزارش ہے، محسن نقوی صاحب سے، ڈائریکٹر زراعت پنجاب سے، کہ خدارہ کنٹرول ریٹ پہ میرے غیور کسانوں کو فرٹیلائزر مہیا کی جائے۔ ڈویژن صدر حاجی نذیر کا کہنا تھا کہ شوگر ملز کے ذمہ 35 کروڑ روپے سے زائد واجب الادا ہے، احتجاج کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ شوگر مل دے واجبات کم از کم جنگ مل دے 30 تو 35 کروڑ روپیہ ہے۔ بار بار یقین دانی کرنے لیکن انہوں نے آج تک پیسہ نہیں دیتا۔ نہایت افسوس نالے سے حکومت وقت احتجاج کے ذریعے ریکارڈ پہ کرینا بابر کرینا جو کسان دے نالو چنگا کام کرو تو پیمنٹ لائے دیو، نہیں تو کسان سڑکوں تو سی حکومت تماکہ ویک دیتا سی وکسا۔ کاشتکاروں کا انتظامیہ کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار، پنجاب حکومت نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ پر ایکسپورٹرز ہچکچاہٹ کا شکار، مشکلات میں گرا برآمدی شعبہ مزید متاثر ہونے لگا۔
डॉलर की बदलती कीमत बरामदी शोबे को असरअंदाज करने लगी। एक्सपोर्टर्स का हुकूमत से फिक्स रेट का मुतालबा। कहते हैं डॉलर की कीमत में कमी से पैदावारी लागत में कमी होगी, लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल में आलमी मार्केट में कीमत देना मुश्किल हो गया है। एग्जेक्टिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम ने बताया कि बरामदी सेक्टर में बेहतरी के लिए इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। हुकूमत ब्लैक मार्केट खत्म करके कमर्शियल बैंक्स को चेक करे। शिपमेंट्स जानी है 3 माह बाद या 4 माह बाद, नो बॉडी नो के उस वक्त क्या रेट्स होगा। इसी तरह इंपोर्ट्स के ऊपर भी जो बाइंग कर रहे हैं उनको भी कोई पता नहीं है कि हमने किस रेट के ऊपर ये खरीदनी है चीजें या सेल आउट करनी है। डॉलर की कीमत कम होने पर सनतकारों ने कंपनियों से धागे की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। बोले डॉलर 1 रुपया भी बढ़ जाए तो कीमतें फौरन बढ़ा दी जाती हैं, मगर गुज़श्ता 5 दिन से डॉलर में नुमाया कमी के बाद भी धागा सस्ता नहीं हो रहा। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हसनैन तारिक ने कहा कि हुकूमत मुदाखलत करके धागे की कीमतों में कमी कराए। सनतकार कहते हैं तिला, विस्कोस, पोलेस्टर, मेटालिक, यार्न, पिशम धागे समेत तमाम खाम माल कमी की जाए। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान के लिए भी दर्द-ए-सर बन गई। इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सनतकार के तहफ़्फ़ुज़ात बोले हुकूमत बंद कमरों में फैसले के बजाय स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ने लगी। प्रोसेसिंग मिल्स मालकान शदीद परेशान। चेयरमैन अपटपमा हाफिज असगर कादरी कहते हैं बिजली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली महंगी करना मजबूरी तो हुकूमत इंडस्ट्री की मुश्किलात भी दूर करे। मिल्स मालकान अपना नुकसान करके सिर्फ मजदूरों का चूल्हा जलाने के लिए कारोबार कर रहे हैं। इस मरतबा जो बिल आए हैं, अब ये हिसाब लगाओ कि 3 गुना बिल आ गए हैं हमें, लेकिन ये पिछले जो ZRI ख़त्म होने के बाद अब ये 6 महीने का हम सोलर टैरिफ निकालें, 3 गुना बिल हो गए हैं। अब ये 3 गुना बिल कैसे पे करेंगे, किस तरह पे करेंगे? ये आखिरकार इंडस्ट्री के ऊपर ये बोझ जो पड़ रहा है, क्या ये तमाम के तमाम मजदूर जो हैं हुकूमत को काम करते अगर अच्छे नहीं लगते, इनको लिए कोई और वसाइल पैदा करते हैं। जो हमारे मजदूर जिनकी तरफ देख कर हम आज ही फैक्ट्री चला रहे हैं कि इसलिए कि इसका कोई रोजगार बना रहे। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि मजदूर की कम से कम उजरत से ज्यादा तो वर्कर्स का बिल होता है। हुकूमत ने रिलीफ फराहम न किया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत गरीबों को बचाने के लिए यूटिलिटी बिलों में हकीकी रिलीफ दे। एक जो घर है मजदूर का, उसकी 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं और उन जो हालात बन गए हैं, जो बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स, गैस का, बिजली का बिल बढ़ गया है। वो जो उसकी सैलरी है अगर 32,000 रुपये लेता है तो वो पहले जो 5-4 हज़ार बिल आता था बिजली का, अब वो 20,000 पे चला गया और 25,000 रुपया उसका राशन का, ग्रोसरी का, घर का मंथली खर्चा है। उस सिलसिले में हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि इन गरीब लोगों के लिए कोई आसानी हो सके। सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री की बका के लिए स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर पॉलिसियां बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को गरीब आवाम के लिए सख्त, सरकारी हुकाम के लिए नरम। सरकारी इदारों का बोझ आम अवाम उठाने पर मजबूर। रीजन भर के सरकारी इदारों ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। सरकारी इदारों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर। रीजन भर के सरकारी इदारों ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए की बिजली के बिल अदा नहीं किए। वासा फेस्को का 1.5 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। पंजाब पुलिस ने भी 3 करोड़ से जायद का बिल न भरा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 50 लाख, महकमा रेलवे 68 लाख, वफाकी मोहतसिब 4,50,000 और महकमा जेल 1 करोड़ 50 लाख का डिफाल्टर है। PHA 3 लाख, TMA मदीना टाउन के जिम्मे 5 करोड़ के बिल वाजिबुल अदा हैं। महकमा एजुकेशन 1,31,000, महकमा जंगलात 3,75,000 का नादहिंदा है। GM कस्टमर सर्विसेज उमर याद गोंदल कहते हैं सरकारी डिफाल्टर से कोई रायत नहीं होगी। नादहिंदादारों के कनेक्शन काटने की हिदायत जारी कर दी है। 4 अरब रुपया जो है ना, ये है पेंडिंग इनके पास, जिनमें से 2 अरब रुपया वासा का है और बाकी कुछ छोटी छोटी अमाउंट है। मेजर डिफाल्टर सिर्फ वासा है, अदरवाइज इनके अलावा ना पुलिस है ना जुडिशरी है, वो डिफाल्टर नहीं है। उनके अगेंस्ट हमारी 1 महीने की ड्यू पेमेंट है। फेस्को ने सरकारी डिफाल्टर्स को फाइनल नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसला। वासा फैसलाबाद ने शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। बिलों से इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टमेंट चार्जेस को निकाल दिया गया। शहरियों को 25% तक रियायत मिलेगी। फैसलाबादियों के लिए खुशी की खबर। बढ़ती महंगाई में वासा को अवाम पर रहम आ गया। वासा बिलों से इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए गए। चार्जेस खत्म होने से शहरियों को बिल में 25% तक राहत मिलेगी।
डायरेक्टर रेवेन्यू वासा मोहम्मद इकबाल मलिक ने बताया कि सहूलत का इतलाक घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन पर भी होगा। वासा हुक्काम का कहना था कि महंगाई में शहरियों को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। इतनी महंगाई के दौर में एक फैसला हुआ कि जो 25% EAC फ्यूल अपना इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसको ख़त्म करके गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के साथ उसको अटैच किया गया है कि जब तक टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ गवर्निंग बॉडी, तो शहरियों को सितंबर के बिलों में इनको रिलीफ दिया गया है। डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री तमाम बिलों में इनको रिलीफ दिया गया है। वासा हुक्काम के मुताबिक बिजली की कीमतों में एडजस्टमेंट का 25% हिस्सा सितंबर से वासा बिलों में शामिल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चीनी की कीमतें कम हुई तो चावल की कीमत आसमान को छूने लगी। एक हफ्ते में चावल की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा 360 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। महंगाई के बाहर जारी चावल की कीमत भी बढ़ने लगी। एक हफ्ते में चावल की कीमत में 10 रुपए किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावलों की कीमत जैसे कि कुछ हफ्ता पहले 350, 325 रुपया थी, अब चंद हफ्तों बाद ही 350 से क्रॉस हो गई हैं। अवाम के लिए चीनी, आटा, ये चावल जो मेन चीज़ें, ये अवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुके, आसमानों से बातें करने लगी। चावल के पैदावारी शहर झंग में कीमत 250 रुपए से शुरू होकर 360 रुपए से भी तजावुज कर गई। सुपर कर्नल चावल की कीमत 400 रुपए क्रॉस कर गई। ताजरों का कहना है कि नई फसल आने पर कीमतों में कमी होगी। जो पुराने चावल हैं वो पूरा साल इस तरह महंगाई की वजह से महंगे रहे हैं, और अब हम ताजर हजरात भी और अवाम उन्नास की भी जो सोच है, जो उनका इस वक्त फ्यूचर है, वो ये है कि अब आइंदा जो फसल नहीं आएगी उसके अंदर कुछ कमी वाक़ई होगी। शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खोरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत बरकरार। आटा और चीनी जैसे ही आता उसी वक्त खत्म हो जाता। रोज रोज चक्कर लगाते हैं मगर खाली हाथ लौटना पड़ता है। चीनी की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। डिमांड और सप्लाई में फर्क से अवाम परेशान। स्टोर्स पे आने वाला आटा और चीनी फौरी खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। खवातीन ने इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। जो आटा आता है, चीनी आती है, थोड़ी सी औरतों को मिलता है, वो बाकी बात ब्लैक कर देते हैं, तो किसको नहीं मिलता। और पैसे खरीद कर बेच ज़्यादा मतलब कि महंगे दामों बाहर बेचते हैं, जो औरतों को नहीं देते। ये देखो लाइनें लगी हुई हैं, औरतें उधर बैठी हैं, जो इधर से दराज होना ये भी बैठी हैं। 10-15 का दराज करते हैं, तो वो भी जो उनकी सिफारशी होती है ना, उनका दराज करते हैं, सभी का दराज नहीं करते हैं। बरते ऐसे औरतें देखो बाहर में बैठी, धूप में बैठी, तंग आकर घर में चली जाती हैं। जो बेवा हैं उसको भी नहीं मिलता, जिसके अच्छे हैं हालात वो ले जाते हैं। खवातीन ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं आटा और चीनी का स्टॉक होने के बावजूद हमें नहीं दिया जाता। सुबह के आगे इधर बैठे, इधर कुछ नहीं बाजी खा रहे, हम तावन नहीं खा रहे, धक्के दे रहे, इधर कुछ नहीं दे रहे हम। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाजिब के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।